Let us pray. May the purpose for which you called and strengthened us today be fulfilled. In Jesus' name we ask. Amen. It is indeed a blessing to sit among friends and to think of the old memories, the joy and the excitement of being together. Without much things, I would go into the scripture and then maybe come back into the time of fellowship where we could exchange pleasantries with Bhai Sudipta, who has been a good mentor and a leader while in college. So, and his wife Sapna as well. So today, I have taken the passage from Matthew chapter 21, verse 33 to 40. Online fellowship is always exciting. Online fellowship is always exciting because you meet people across the globes, and I can see familiar faces also. And this has been a blessing once again to come together. But one of the drawbacks of online fellowship is that we get to hide our faces. And we hide our faces. We do not know as pastors whether you are awake, whether you're sleeping, or whether you're watching something else. So I am going to do one thing. I'm going to speak, but I'm also going to ask you to read from the Bible. That I think is fair. मैं आपको आपके प्रभु वचन में से भी पढ़ने के लिए मजबूर करूंगा ताकि आप अगर पढ़ेंगे तो ही वो सरमन आगे जाएगा. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं जा पाएगा. तो आप अपने अपने बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में आपको पसंद है उसमें पढ़ सकते हैं. हमें अंदाज लग जाएगा क्या आप पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार से हम चलेंगे. तो बताए कि 21वां अध्याय 33वां वचन से क्या कोई भाई या बहन पढ़ना चाहेगा? I can read first. Yeah. Please read. 21 from 33 onwards. 33 till 40. Here another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. And he leased it to the vineyard dresser and went into a far country. Now when vintage time drew near, he sent his servants to the vineyard dresser, and that they might receive its fruit. And the vineyard dresser took his servant, beat one, killed one, and stoned another. Again he sent another servants, more than the first, and they did likewise to them. Then the least of all he sent his son to them, saying, they will respect my son. But when the vindraisers saw the son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vindraisers? Okay. आपने you have read this passage. हमारे भाई ने इतने अच्छे से इसको पढ़ा है. आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदी में भी अगर जब मैं पढ़ने बोलूं तो हिंदी में पढ़ो या आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पढ़ो तो उसका रुचि अलग आ जाएगा. तो आपको मैं अनुवाद करता हूं कि आप मेरा सहायता कीजिए. ये कहानी जब शुरू होता है, दिस स्टोरी दैट स्टार्ट्स इन वर्स 33, देयर इज अ पर्सन हु ओन्स अ विनयार्ड. वो एक खेत का एक मालिक होता है और वो खेत किसी लोगों को देता है और वो लोग उसका देखभाल करने के बाद वो आता है, उनसे पूछता है कि भाई उसके फल मुझे दे दो. लेकिन लोग वो जो दास आते हैं या सर्वेंट्स जो आते हैं, नौकर लोग आते हैं, उनको मार पीट के भगा देते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो और मालिक और 2-3 नौकरों को भेजता है. इस बार फिर वो उसको पीट के वापस भेज देता है. अब मालिक सोचता है कि चलो हम क्या करेंगे, हम अपना बेटा को भेजेंगे, उसको तो थोड़ा इज्जत करेंगे, दैट ही विल एटलीस्ट रेस्पेक्ट माय सन. तो वो सोच के वो अपने बेटे को वहां पे भेजता है. लेकिन जो लोग हैं उसे पकड़ के मार के पीट के मार देते हैं.
बगीचे के बाहर लेके जाके मार के पीटते हैं और फेंक देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो मालिक, हाँ, जो विनयार्ड का मालिक है, वो बगीचा का जो मालिक है, वो उनको क्या करेगा? ये सवाल यीशु मसीह उनके साथ जो बैठे हुए लोगों को पूछता है। आपको क्या लगता है क्या करेगा? जैसा मैंने कहा था कि आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, नहीं तो धीरे 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 बोलेंगे। देखो, सुदीप्ता भाई ने हमें कहा है कि मैंने उनसे पूछा कौन सा पैसेज चूज करूं, तो उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हारा पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा। अब इसमें दो खतरा है। एक खतरा यह है कि मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं कर सकता, तो अगर मैं पवित्र आत्मा को बोलूं तो मार्गदर्शन करे, तो समय तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कंटिन्यू होते जाएगा। तो आपको अभी जल्दी जल्दी जवाब देना है। बताइए कि वो क्या करेगा। यू कैन म्यूट योर सेल्फ एंड आंसर। व्हाट विल द ओनर ऑफ द विनयार्ड डू? यू माइट नॉट बी यूज टू दिस, बट आई एम जस्ट फोर्सिंग यू। जैसा आप इसके आदी नहीं होगे कि ऐसे सवाल जवाब होता है, लेकिन आपको आज तो बोलना ही है। आप बताइए वो मालिक क्या करेगा। बहुत लोग हैं अच्छे से बोल सकते हैं, थोड़ा सा बस अनम्यूट करना है, बोल तो सकते हैं। He might file police for doing that. ओके, और क्या हो सकता है? मेरा ख्याल से वो सारे लोग को पिटाई करता है। वो बेटा को जो मार देगा, बाप का यही होगा कि मारो सबको, मेरा बेटा को मारो सबको, पकड़ के मारो सबको, धो करके। ये अक्सर हमारा मन में भी यही विचार आते हैं। लोग में जब यीशु मसीह ने पूछा तो लोगों ने भी यही जवाब दिया कि वो उसे पकड़ के मार देगा, वो उस बाग या बगीचे को छीन लेगा, किसी और को सौंप देगा। He will take away that place and give it to somebody else. अब ये कहानी अनोखा इसलिए है कि आप अपने आप को आप अपने आप को ये कहानी में कहाँ डालोगे? बाग के मालिक के जगह पे, बाग में काम करने वाले लोगों की जगह पे, कहाँ पे अपने आप को डालोगे? आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। आप अपने आप को अगर डालोगे तो आप आज के जमाने में कहाँ पे हो? उस जगह पे ओनर ऑफ द ओनर। अरे वाह, सही है। ओनर वो है जो मारपीट करता है। हमें सबको अच्छा लगता है मारपीट करना, किसी को डांटना, फटकारना अच्छा लगता है। आप अगर देखोगे आप अगर देखोगे कि ये जो कहानी है 45 वर्ष में देखो, 45 में देखो। When the chief priests and the Pharisees heard this parable, they understood that he was speaking about them. ये अक्सर आप देखोगे पैराबल, जीसस जो भी कहानी बोलता है लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लेकिन इनको सबको समझ में आया कि अपने बारे में कुछ बोल रहा है। पैरासियो भी ऐसे सोचते थे। They also thought that they are the ones who are like the owners. उन्हें भी किसी पे रोक जमाना, उन्हें किसी को डांटना, किसी को चीख करना उनको अच्छा लगता था। वो नजरिया है, एक नजरिया है। अगर आप और हम ऐसे देखेंगे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम शायद उस जगह के किराएदार है ना, उस जगह के किराएदार है। ये हमको पसंद नहीं आता ना सुनने के लिए कि हम उस जगह के किराएदार है। हमने उसके नौकरों को मारा, हमने उसके बेटे को मारा। हमें अच्छा नहीं लगता ये सुनने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहानी को फिर एक बार दोहराओगे, थोड़े ऊपर जाओ, ये कहानी 33वां वचन में क्या लिखा गया? 33 वर्स। लिसन टू अनदर पैराबल। यीशु मसीह दो पैराबल क्यों कह रहा है? वो दो कहानी क्यों बोल रहा है? वो एक से क्यों नहीं समझा रहा है? वो दो कहानी क्यों बोल रहा है? वो पहला वाला कहानी आपको सुनना है तो थोड़ा ऊपर चलिए। 28 वर्स 28, 29 एंड 30। यहाँ पे दूसरा कहानी लिखा गया है, यानी पहला वाला जो कहानी ओरिजिनल कहानी लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है एक आदमी के पास दो बच्चे थे। वो पहले वाले को कहता है जाके काम करो, वो नहीं बोल के फिर जाके काम करता है। दूसरा वाले को कहता है काम करो, वो बोलता है करेगा, लेकिन वो काम नहीं करता। तो अभी यीशु मसीह ने उस पे भी एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? इन दोनों में से किसने पिता का जो इच्छा पूरी की? आपका जवाब क्या है?
which of the two sons did the will of his father? जिसने काम किया। जिसने काम किया। ओके, अब वो भी एक सिंपल है। जीसस, मैंने जैसा कहा है, जीसस जो है ना, स्मार्ट, अपना स्मार्ट भगवान है। वो एकदम सिंपल स्टोरी नहीं बोलता है। वो जब भी कुछ बोलता है ना, तो सोच समझ के एकदम गहरे नींद से उठाने के लिए बोलता है। अब आप अपने आप को इसमें से कौन से को आप अपने आप को कैटेगरी में डालोगे? पहला कैटेगरी में जो ना बोल के हाँ किया, या हाँ बोल के ना किया? सेकंड वाला हम लोग करते हैं। सेकंड वाला हम करते हैं। सब सहमत है? I may be in one first. आई वे बी इन वन। ठीक है, हम लोग मारामारी करते रहेंगे। आप सुदीप्ता भाई से बाद में मारामारी कीजिए सेशन होने के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्स 31। Jesus said, "Truly I say to you, tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you." प्रभु यीशु क्या कहता है कि जो वसूली करने वाले हैं, जो व्यभिचार करते हैं, वैसे व्यभिचार नहीं है उसको, प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं, वो लोग तुमसे पहले जाएंगे। उसने पूरा समाज में से सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है, जो समाज में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जो अपने शरीर का जो धंधा करते हैं, या शरीर को जो बेचते हैं, या अपने ईमान को जो बेचते हैं, वैसे लोगों को बोलता है कि ये लोग तुमसे पहले जाएंगे। ये किसको कहता है? ये विश्वासियों को कहता है। ये क्यों कहता है? आपको देखना है, आपको वही पैराग्राफ में आपको वो देखना है, 23 वर्स 23। आपको आज बाइबल पकड़े रहना है, बाइबल छोड़ना नहीं है। 23 वर्ष में ये फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। फरीसी और जो प्रीस्ट लोग है, याजक लोग है, वो उनके पास आता है और कहता है कि आप किस अधिकार से ये सब चीज कर रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है? अब यीशु मसीह इसलिए ये कहानी बताता है। और जो ये फरीसी लोग जब देखते हैं, हम लोग 45 वर्ष में देखते हैं, फरीसी लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं जब उन्होंने ये कहानी पढ़ा। ये कहानी सुनने के बाद एकदम क्रोधित होते हैं। वो उसे मारना चाहते हैं, यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? परमेश्वर का जो वचन है, हम बोलते हैं, उसमें इतना ताकत है, इतना प्रेम है, लेकिन ये लोग उसे मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने उनका जो जमीर को ललकारा है कि आज जो तुम कर रहे हो उसके बदौलत, आज जो तुम कर रहे हो उसके बदौलत तुमसे पहले बहुत सारे लोग ऊपर चले जाएंगे, आप तो पीछे ही रह जाओगे। ये फरीसियों को कहता है, मंदिर के पुजारियों को कहता है कि आप पीछे रह जाओगे। यू विल बी बिहाइंड एंड दीज पीपल विल गो, एंड पीपल डिड नॉट लाइक इट। अब हम वो कहानी में वापस चलते हैं, जो हम लोग ने आज का मेन कहानी है। 33 वर्स 33 से लेके 40 तक का जो कहानी है, वो कहानी में वापस चलते। उस कहानी में लिखो क्या लिखा गया है। There was a landowner who planted a vineyard, put a wall around it, dug a wine press around it, built a tower and rented it out to wine goers and went on a journey. क्या कोई इसे हिंदी में या कोई भी भाषा में पढ़ सकता है? एक और दृष्टांत सुनो। हाँ। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अब आप देखो, इस कहानी में आपको कुछ अलग लग रहा है? ये वचन में कुछ आपको, ये वचन में आपको कुछ अनोखा लग रहा है? ये वचन में क्या लिखा गया है? आपको क्या समझ में आया ये वचन में? ये वचन में आप देखो, उन्होंने एक बंजर जमीन लोगों को नहीं दिया है, उन्होंने एक पूरा सेटअप बना के दिया है। आप अगर देखोगे जैसा ये सेटअप कैसे बनाते हैं, उन्होंने बाग तो उन्होंने खुद लगाया, उन्होंने दीवार उसके बाजू बाजू में खुद लगाया, उसने वो राक्षस बनाने के लिए जो खड्डा वगैरह है, जो चाहिए वो सब खुद बनाया।
उसके बाद वहां पे एक रखवाली करने के लिए टावर बनाया। तो उन्होंने एक बनाया बनाया चीज किसी को दिया है। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके अपना अनुसार, अपना मन के अनुसार बना के जो चीज उनको अर्पित किया है, बोला इसका देखभाल करो। तो उसने अपना दिल और जान लगा के उनके हाथ में दिया है। दूसरा चीज आप देखोगे, कोई भी ऐसे बना बनाया चीज ऐरे गहरे के हाथ में नहीं देते, अनजान आदमी के हाथ में नहीं देते, देते अपने आदमी के हाथ, जो उनका पहचान में है, जो उनके विश्वास में है, उसी के हाथ में वो अर्पित करते हैं कि वो उसका देखभाल करेगा, इसीलिए उसके हाथ में ये देते हैं। বলি ও খালি পড়ার ছবি পাঠিয়ে দেয় একটা পড়ছে आपने ये कहानी वापस पढ़ो। ये कहानी में उन्होंने जो बगीचा बनाया है पूरा सेटअप करके अपने विश्वासी लोगों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन विश्वासी लोग ही गद्दार निकले। विश्वासी लोग ऐसे निकले कि अब बाहर के लोगों को पूछना क्या। अक्सर हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी ऐसा ना, हमें एक बनाया बनाया सेटअप दिया गया है ना, हमें बना बनाया सेटअप दिया गया है। हमारा घर कौन चुना? प्रभु ने चुना। हमारा मम्मी पापा कौन चुना? प्रभु ने चुना। हमारा कलीसिया किसने चुना? प्रभु ने चुना। हम कहाँ पे पैदा होंगे? प्रभु ने चुना। हमें क्या मन चाहिए? सब कुछ प्रभु ने दिया। आज एक दिन नहीं, इतने सालों से उसने अपना देखभाल किया और उसने हमें इतना बड़ा बनाया। उसका कुछ तो वजह होगा। प्रभु ने हमें इतना कुछ देने के बाद जब वसूली का टाइम आते हैं तो हम अपना असली रंग दिखाते हैं। जब हमें कुछ अर्पण करना होता है, जब असली रंग दिखाते हैं, चाहे वो कुछ देना हो, चाहे वो कुछ करना हो, चाहे वो कुछ चीजों को अर्पण करना हो, जब हमें तकलीफ होता है, हम अगर कलीसिया में भी जाते हैं, जैसे हमने भाई ने अनाउंस किया था, जिसको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी हम ये सोचते हैं ना कितना करें। हमारे खुशी से करते हैं क्या? दिल से करते हैं क्या? जब प्रभु ने हमें आशीष दिया इससे करते हैं क्या? हमारा जो बना बनाया सेटअप जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका एक ना एक दिन हमें भी तो उत्तर देना है। हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई हमें सवाल करे। हमें भी कोई अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई हमें पूछे, भाई तुम कर क्या रहे हो? अरे हर दिन जो है प्रभु का एक दिन है, प्रभु का देन है, हमें दिया गया है। कल का सुबह बहुत सारे लोग हमारे बीच में देखेंगे भी नहीं, तो क्या हमें आज का दिन ठीक से इस्तेमाल करना है कि नहीं? Should we or should we not use this day wisely? Look at the story. देखो वो कहानी क्या लिखा गया है। When the harvest time approached, he sent his slaves to the vine growers to receive his produce. The vine growers took the slave, beat one, killed another, and stoned the third. Then he sent another group of slaves larger than the first, that they would did the same to them. यानी यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमें भी यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बगीचा के मालिक बार बार हमें याद दिलाने आता है कि तुम्हारा जीवन जो है अर्पित जीवन है, इसका मालिक तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक किराएदार हो, और तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना है, बराबर? तुम्हें कुछ ना कुछ तो अर्पित करना है। हम लोगों को ताना मारते हैं जो हमें पूछता है, हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, हमें अपना ही क्या बोलते हैं, हमें अपना ही मंदिर बनाना है, हमें अपना ही परमेश्वर बनाना है। जैसा मैं कंफर्टेबल हूं वैसा मैं वर्शिप करूंगा। जहां से मैं कंफर्टेबल हूं, कोई प्रभु वचन पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने के बाद याद नहीं करना चाहता, उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। आज प्रभु वचन तुम्हें टोकेगा, आज प्रभु वचन तुम्हें प्रोवोक करेगा पूछने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तो प्रभु ने क्या किया? उसने मालिक ने क्या किया? उसने अपना खुद का बेटा भेजा ताकि लोग उसे इज्जत दे, सम्मान दे। यीशु मसीह को इस समाज में भेजा गया था ताकि लोग उसे
पहचाने, लोग उसे समझे, लोग उसे सम्मान दे, लोग उसके साथ एक संबंध बनाए। ठीक है, पहला गलती माफ, जो पहले पहले तुमने जो भी किया बाप, अभी एक मौका है सुधरने का, लेकिन लोगों ने उसे ही क्रूस पे चढ़ाया। आप जब इतिहास देखोगे, क्रूस पे चढ़ाने वाले उनके ही लोग थे, बाहर से कोई नहीं आया। आज भी अगर आप देखने जाओगे, कलीसिया के अंदर ही सबसे ज्यादा तकलीफ है। आप जब ये प्रभु वचन पकड़ोगे, अपने जीवन पे उसका इस्तेमाल करोगे, when you start to implement that in your life, the opposition will come from the church itself. आपका घर में से आएगा, आपका कलीसिया में से आएगा। यही तो है, यही तो राज है प्रभु वचन का। इसीलिए बहुत सारे लोग उसको दूर रखते हैं। कहीं कहीं घर पर आप जाओगे तो वो तो डरते हैं, उनको पूछोगे बाइबल किधर है, ढूंढना पड़ता है बाइबल किधर है। आज हमारे सामने ये चेतावनी है, आज हमारे सामने ये एक चेतावनी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 41 वर्स पढ़ो। कोई 41 वर्स पढ़े? कैन समबडी रीड वर्स 41? They said to him, he हाँ। will destroy those wicked men miserably हाँ and lease his vineyard to हाँ। other vineyarders who will render to him to the fruit in this season. तो मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? दो चीज लिखा गया है। एक, वो आके तो बर्बाद कर देगा, जिसने उसका समय और उसका जो उसने जो बनाया हुआ सेटअप का दुरुपयोग किया है, उसका क्या करेगा? नाश करेगा, उसका पूरा नाश करेगा। दूसरा चीज क्या है? वो उसे लेके दूसरे लोगों को देगा, जो समय अनुसार उसका फल निकाल के उसे देंगे। आज हमें भी ये ध्यान में रखना है भाई, हमारे जीवन में क्या फल आ रहा है प्रभु के राज्य के लिए। हम 10 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से है, विश्वासी है, लेकिन इससे प्रभु का राज्य को क्या मिला? इससे प्रभु का राज्य में कुछ परिवर्तन हुआ? इससे क्या एक जीवन भी प्रभु के पास आया? ये हमें आज पूछना है। हम वो पेड़ है जिसने कभी फल दिया नहीं है, तो क्या प्रभु हमें छोड़ेगा? क्या प्रभु हमें पूछेगा नहीं कि तुमने तो ये तो पूरा बनाया बनाया सेटअप का बेकार, यानी यू वेस्टेड इट? विल गॉड नॉट आस्क यू? हमें, तुम्हें और हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि एक न एक दिन तो हिसाब होगा। एंड प्रभु वचन आज हमें कहता है कि जिसने फल नहीं लाया या जिसने फल नहीं किया, उसका नाश किया जाए। आपने शायद प्रभु का नाम जाना होगा, आप शायद लोगों को बताते हैं कि आप प्रभु के हैं, लेकिन क्या आपने सचमुच अपने आप को प्रभु को अर्पण किया है? अगर अर्पण किया है संपूर्ण तरह से, तो फल क्यों नहीं आया? क्या लोग आपको देख के प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या हम भी समाज में से ऐसे लोग हो गए हैं कि लोग हमारे और उनके बीच में कुछ अंतर ही नहीं देखते, बोलते अच्छा आदमी है? क्या लोग तुम्हें मसीहा कहते हैं, मसीह के आदमी कहते हैं? ये हमें आज अपने आप को टटोल के देखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु उसे देगा जो समय अनुसार फल देगा। आगे देखो, मैं ये आपको यहाँ पे वापस 45 वर्स में देखो। When the chief priests and the Pharisees heard the parable, they understood that he was speaking about them. अरे वो जो कहानी है ना, सोअर एंड द सीड, वो बीज के बारे में जो जाता है डालता है, अरे वो वाला कहानी किसी को समझ में नहीं आया। ये कहानी कहां से समझ में आया लोगों को? लोगों को समझ में आके लोगों ने उसे मारने की प्लान किया। जब दिल पे प्रभु उंगली रखता है तो आप सब समझ में आता है। यहाँ पे कोई भी अनजान नहीं है, यहाँ पे सब समझते हैं, लेकिन सब अनजान बनते हैं। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? कैन समबडी रीड 46? कोई 46 वर्स पढ़े। Although they were seeking to arrest him, they feared the crowds because they held him to be a prophet.
लोगों के डर के मारे उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मौका मिलता तो उसी टाइम पे उन्हें खत्म कर देते, उसी टाइम पे उनको खत्म करते थे। क्योंकि ये जो है प्रभु वचन जो उन्होंने सुना, ये दो कहानी उनके सुनने के बाद उनके जीवन में हलचल मचने लग गई। इसलिए उन्होंने पूछा, यार वो कौन है जो हमें, तुझे कौन अथॉरिटी दिया, हु गेव यू द अथॉरिटी? एंड जीसस कहता है, मैं मालिक हूं, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा खुद का नहीं है, ये मैंने तुम्हें दिया है, इसीलिए मैं तुमसे अधिकार से पूछ सकता हूं। मैंने बहुत सारा कोशिश किया है, लेकिन अगर तुम उसके बावजूद भी अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगे और तुम मेरे सामने जो तुम्हें जो कार्य दिया है वो पूरा नहीं करोगे, तो मुझे हिसाब तो लेना होगा। और प्रभु वचन कहता है, यहाँ पे देखो, अभी ये हिंदी में कोई तो एक पढ़ो 43 वर्ष। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अभी जो बहन ने पढ़ा है वो थोड़ा ध्यान से सुनो, क्या बोला है? इसीलिए प्रभु का राज्य तुमसे लिया जाएगा। आपके पास अधिकार नहीं है बोलने के लिए, बाबा मैं उधर जाऊंगा। वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो फल देंगे। ये कहानी में मैंने आपसे पहले पूछा था, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कहानी? अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ है आप कहानी में ये बाग में है। वर्स 43, यू आर पीपल ऑफ 43 वर्स। पहले जिसने काम नहीं किया करके वो काम आपको सौंपा गया, मुझे सौंपा गया, ताकि हम फल भरे, टाइम टू टाइम प्रभु को वो फल दे। अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारे साथ भी वो होगा जो पहले वाले के साथ था। यहूदी लोग ने भी यही सोचा था कि अपना परंपरा, अपना माता पिता सब ऐसे यहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वजों सब यहाँ से है, हम तो इब्राहिम के संतान हैं, हम तो उनके साथ में बैठ के खाना खाएंगे, हमारा तो हक बनता है स्वर्ग में। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, तुम्हें बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे जगह पे किसी और को लाया जाएगा। आज एक कलीसिया के लिए एक सबक है, एक प्रभु वचन से हमें सीख मिलता है, जहाँ पे प्रभु जो हम बोलते हैं प्यार करता है, लेकिन एक बाप के समान बच्चों को ठीक भी करता है, उसके साथ कड़क भी होता है। आज कलीसिया के साथ वो कड़क होते हैं, वो कहता है अगर तुम फल नहीं लाओगे तो कौन आएगा? वसूली करने वाले, सड़क में अपने शरीर बेचने वाले, वो राज्य में आएंगे, लेकिन आप नहीं आओगे। आज हमें जो समय दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा वह हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हम अपना जीवन, अपने कलीसिया के जीवन, अपने परिवार के जीवन प्रभु के हाथ में सौंप के उसके नाम को महिमा कर सके। आओ हम प्रार्थना। महाप्रभु, हम तेरे द्वार में फिर एक बार आते हैं, हमारे भाई और बहनों को लेके प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुमने ये सुंदर सा समय दिया है जहाँ पे हम एक होकर आए हैं प्रभु, तेरे वचन से सीखने के लिए आए हैं प्रभु, तेरे आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को सरल करने के लिए आए हैं। विनती करते हैं प्रभु, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु, आज कोई भी यहाँ से छोड़ कर नहीं जाए प्रभु, बल्कि तुझे छू के प्रभु तेरे से आशीष लेके जाए प्रभु, ताकि उनके जीवन द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। विनती करते हैं प्रभु, इस कलीसिया द्वारा प्रभु, बर्निंग लैंप के द्वारा प्रभु, कोई भी ऐसे लोग नहीं रहे प्रभु जो काम ना करे प्रभु, कोई भी ऐसे लोग ना रहे प्रभु जो तेरे बनाए हुए चीजों को प्रभु उसको बर्बाद करे प्रभु, उसका दुरुपयोग करे। विनती करते हैं इनके मिनिस्ट्री द्वारा बहुत सारे चर्च में प्रभु जागृति आए। विनती करते हैं इनके मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग अपने जीवन को तेरे लिए अर्पित करें प्रभु, और इनके जीवन के द्वारा, इनके मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। और अंतिम दिनों में प्रभु जब तू हमें बुलाएगा प्रभु, हम गर्व से कह सकते हैं तुमने जो हमें काम दिया है वो हम पूरा करें। विनती करते हैं प्रभु, हम सभी को तेरे हाथ में सौंप के तेरे नाम को महिमा मिले। ये सब हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।